السلام علیکم، ویلکم ٹو عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عرشی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ضدی عشق میرا، جس کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ اس کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کشش کے ساتھ بنتا ہے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور کائنڈلی ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کیے جانے والے ناول کے ڈیلی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ریسیو ہو سکیں۔ کیا خیال ہے کون ہوگا ان کا دشمن؟ اور کشش اب کڈنیپرز کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں؟ اللہ نگہبان۔ ضدی عشق میرا، رائٹر منتہا چوہان۔ قصت نمبر 17۔ مدیحہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حاذق نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مدیحہ کو ہاسپٹل بھیجا اور خود یامین کے ساتھ کی طرف آیا، جو پریشان کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ انائشہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، میرا دل نہیں مان رہا، حاذق نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یامین نے ایک قہر کی نظر حاذق پر ڈالی۔ حاذق جو بھی اس سب کا ذمہ دار ہے وہ بچ نہیں پائے گا، سرد لہجے میں کہتا وہ وہاں سے باہر نکلا۔ حاذق سخت پریشان ہو گیا، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا انائشہ کچھ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ ندیم، ہاسپٹل جاؤ اور مدیحہ پہ کڑی نظر رکھو، مجھے وہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حاذق نے اپنے اعتباری شخص کو ہاسپٹل روانہ کیا اور خود اندر یامین کے پاس گیا۔ یہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک یامین کی دلہن نہیں آئی، امارہ نے سویرا بیگم کے کان میں گھس کر کہا۔ دونوں بہنیں سب سے الگ تھلگ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ کیا پتا اب سسر صاحب کون سا دھماکہ کرنے والے ہیں، اپنی ہی اولاد کی خوشیوں میں ایک تماشائی کی طرح شامل ہوئے ہیں۔ سویرا بیگم رہ کے داور اور کرن کے اچانک نکاح پہ غصہ آ رہا تھا۔ باجی، یہ تمہاری سسر بھی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ابھی بندہ کچھ پلان کرتا ہے یہ پہلے ہی پانی پھیر دیتے ہیں۔ امارا کو اپنی بیٹی طوبہ کی شادی یمین سے نہ ہو پانے کا دکھ تھا۔ اسٹیج پہ داور اور کرن بیٹھے سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ کیمرہ مین بہت مہارت سے ہر ایک لمحے کو کیپچر کر رہا تھا۔ یامین ہال میں انٹر ہوتے ہی دادا جی پہ نظریں اٹھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ دادا جی کو کیا جواب دے۔ کشش کے کڈنیپنگ کا سن کے وہ کیا ریاکٹ کریں گے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے خیال کی نفی کی، مجھے دادا جی سے چھپانا ہوگا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پریشان ہے؟ دادا جی اس کے چہرے پہ پریشانی بھانپ گئے تھے۔ وہ دادا جی، کشش، یامین سے بات نہ بن پڑی۔ کیا ہوا کشش کو، وہ ٹھیک ہے نا؟ صبح بھی کہہ رہی تھی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دادا جی پریشانی سے بولے۔ جی کچھ نہیں ہوا اسے، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسے ہاسپٹل بھیجا، اس کا بی پی لو تھا، ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے۔ یامین نے فوراً ہی بات کو سنبھالا۔ کہاں، کون سے ہاسپٹل میں؟ دادا جی تڑپے۔ آپ فکر نہ کریں دادا جی، ابھی وہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال اس رخصتی کو یہیں روک دیں اور بعد میں گھر جا کے۔ یامین کہتے ہوئے نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کشش کی طبیعت زیادہ اہم ہے، فنکشن کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ نہیں دادا جی، ابھی مہمانوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، فنکشن کو جاری رہنے دیں، پھر فضول میں باتیں بنیں گی۔ آپ یہیں رہیں، میں کشش کے پاس جا رہا ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یامین نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ وہ مطمئن ہوئے تو نہیں، لیکن پھر بھی بات مان گئے۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ یامین نے حاذق سے عجلت میں پوچھا۔ نہیں، سب جگہ دیکھ لیا، کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا۔ حاذق یامین سے زیادہ پریشان تھا۔ کیمراز چیک کرو سارے، فوراً، یامین نے کال ملاتے حاذق سے کہا تو وہ فوراً آفس سے باہر نکلا۔ یس، مجھے اس کی ابھی کی رپورٹ دو۔ وہ کہاں ہے؟ آواز میں غصہ تھا۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دوں گا، فوراً رپورٹ کرو۔ کال کرتا موبائل ٹیبل پہ پٹخا۔ I swear if you are responsible for this, will kill you۔ وہ لب بھینچے خیالوں میں کسی سے مخاطب ہوا۔ اوکے، ویٹ کر رہا تھا۔
इनके हाथ बांधो, एक लड़के ने दूसरे से कहा। लो जी, इनके तो हाथ बांधे जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे बेचारियों के साथ क्या होता है। कशिश और यामीन की रुखसती हो पाएगी कि नहीं। अरे बेहोश हैं दोनों, क्या कर लेंगी, रहने दो, दूसरे ने कहा। लेकिन मैडम ने कहा कि इनके हाथ पैर बांध के रखने हैं। वो लड़का घबराया। यार हसन, तू नया आया है, मैं बहुत पहले से मैडम के साथ इस काम में शामिल हूँ। ये लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, और वैसे भी इन्हें इस कमरे में बंद करना है तो ये क्या कर लेंगी। चला, भूख लगी है, कुछ खा आते हैं। असद ने अपनी बर्तरी जिताई तो हसन चुप हो गया, और दोनों दरवाजा लॉक करते बाहर गई, जबकि वो दोनों बेसुध जमीन पे पड़ी थी। दादाजी ने अनाउंस किया कि यामीन की शादी को किसी वजह से फिलफौर मुलतवी किया जाता है, जिस पे खासी चाह-मगोइयां हुई। लेकिन इन्हें किसी की क्या परवाह, इनके लिए इनकी औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं था। लो जी, हो गई शादी। एक बार फिर से लगता है दुल्हन भाग गई, अमारा ने तंजिया कहा तो सवेरा बेगम को भी कुछ गड़बड़ लगी। इन्हें लगा कि दादाजी सबसे कुछ न कुछ छुपा रहे थे। वो अपनी जगह से उठती हयात साहब की तरफ बढ़ी, और जो किसी से कुछ बात कर रहे थे, सवेरा बेगम के इशारे पे इनके पास आए। आपके अब्बा हजूर क्या कर रहे हैं? पहले कहते हैं शादी है, यामीन की लड़की तक का इल्म नहीं। हम चुप कर गए। अब कहते हैं शादी मुलतवी हो गई। इधर उधर देखते राजदारी से कहा, क्या कर सकता हूँ मैं, इनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? हयात साहब पहले ही भरे बैठे थे। लोग तो अच्छा खासा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो कशिश कहाँ है? आज तो इस मैडम की सालगिरह थी ना, केक काटना था, लेकिन जब से यहाँ अम्मा है वो गायब हैं। ये सब चल क्या रहा है? सवेरा बेगम के दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से चल रहे थे। हयात साहब ने भी सोचते हुए गहरा सांस खारिज किया। बिना कुछ कहे अपने एक दोस्त की जाने बढ़ गए। इन्हें इस वक्त किसी से कोई गर्ज ना थी, इन्हें बस ढेर सारी रकम चाहिए थी अपना बिजनेस बचाने के लिए, और वो अपने ही किसी दोस्त से मदद तलब कर रहे थे। सर पे चोट लगने से इसका सर बहुत भारी हो रहा था। सर पकड़े वो उठी तो अंधेरा काल कोठरी देख वो सख्त घबराई। फौरन से इसे सब याद आ गया, और दिमाग में कशिश का ख्याल इसके दिल को बुरी तरह झंझोड़ गया। कश कशिश कशिश कहाँ हो? वो जल्दी से उठी, बिना अपनी चोट की परवाह किए। शोर ना करो, यही हूँ। एक तरफ अंधेरे में वो बैठी अनायशा को गौर करने पे नजर आ ही गई। सद शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते वो इसकी तरफ बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन ये क्या कर रही हो? वो इसके करीब बैठते हैरत से इसी हाथों से मिट्टी खोदते हुए देख रही थी। गेम खेल रही हूँ, दिखाई नहीं देता मिट्टी खोद रही हूँ। कशिश ने मुंह बनाते कहा, लेकिन अपना काम जारी रखा। वो जहां से मिट्टी खोद रही थी वो जगह ऊंची थी, और वो अच्छी खासी मिट्टी जमा कर चुकी थी। लेकिन अनायशा को कुछ समझ नहीं आया। देखो कशिश, इसका नाम सोचते हुए उठी। अनायशा। अनायशा ने फौरन अपना नाम बताया। हम तो तो अनायशा, बात ये है कि हम किडनैप हो चुके हैं, और इसमें वो तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ थी, इसका नाम मदीहा है। अनायशा ने इसकी बात काटी। हाँ हाँ, वही मदीहा चुड़ैल। इसको तो मैं बाद में मिलूंगी। खैर, हमें यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। कशिश ने इसे अपनी बात इसके गोश गुजारी। लेकिन इस मिट्टी का क्या फायदा? अनायशा ने हैरत से इसे मिट्टी उठाते देख के पूछा। कुछ देर में पता चल जाएगा। खैर एक बात बताओ, मुझे ना बचपन ही से खैर एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन ही से एडवेंचर्स का बहुत शौक था, और किडनैप होने का शौक तो पूछो ही मत। अब ये ख्वाहिश पूरी हो गई है तो फायदा तो उठाओ ना। बहुत मजे से कहती वो अनायशा को दंग कर गई। क्या? क्या मतलब? कशिश, हम किडनैप हो चुके हैं और आपको एडवेंचर्स की पड़ी है। अनायशा इसके पास आती बोली, जो दरवाजे के पीछे छुप रही थी। इशारे से चुप करवाया, और दरवाजे के साथ कान लगा के सुना। अनायशा को वो कहीं से भी इस वक्त एक दुल्हन नहीं लग रही थी। हाँ, अलबत्ता हशर सामानिया इसकी दुल्हन वाली थी। वो बाहर ही हैं, और दो लोग हैं। धीरे से दिमाग लड़ाते कहा। कशिश बहुत शरारती हैं यार, बहुत शरारती हैं। पता नहीं आगे क्या करने वाली हैं, अल्लाह करे।
आसानी से इस कैद से निकल जाए और इसे कुछ हो ना। लेकिन आपको कैसे पता वो दो हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। अनायशा को इसका अंदाजा लगाना कुछ अच्छा ना लगा। दूसरी बात, मुझे आप नहीं तुम कहो, बहुत छोटी हूं मैं तुमसे। इसके कहने पे अनायशा ने भवें अचकाते इसे हैरत से देखा। वो तो इसे इज्जत से आप कह रही थी। और पहली बात याद आने पे फौरन पूछा। पहली बात ये है कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। कहते वो वहां से वापस पीछे गई और मजीद मिट्टी अपने हाथों में ले ली और कुछ अपने कामदार दुपट्टे में रख के गिरह लगाई। ओ खुदाया, तुमने तो सारा दुपट्टा खराब कर दिया। अनायशा को इसकी ये हरकत शौक लगा गई। कशिश ने इसके चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे खा जाएगी। मेरा दुपट्टा है ना, तो तुम्हें क्या मसला है? कहते ही मुंह बना के वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अनायशा शॉक्ड, कशिश रॉक्ड। मैंने आपसे पिछले आई थिंक नावल में पूछा था, पिछले एपिसोड में, कि कौन है जिसका जो अपना इस दुनिया में किरदार कशिश वाला निभा रही है। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, लेकिन आपने नहीं बताया क्योंकि आपके नजदीक मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो आपके कुछ लगती नहीं हूँ। जब वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कशिश ने इसे जल्दी से कहा, लेकिन वो अपनी जगह साकित ही रही। कशिश ने इसे खींच के दरवाजे के पीछे किया और तभी दरवाजा खुला। हाँ, काम हो गया है, किसी को मुझ पे शक नहीं। अब आगे का काम तुम्हारा है, कोई भी कोताही ना हो। मदीहा ने कहते ही कॉल बंद की। मेरी यामीन ढूंढते रह जाओगे? तकिए पे सर टिकाते वो आंखें मूंदते बहुत सरूर से बोली, जबकि ये नहीं जानती थी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आज हम किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो कल हमारे साथ भी वही होगा और इसी गड्ढे में हम खुद गिरेंगे। लेकिन लोग बुराई करते वक्त सब भूल जाते हैं, बस दुनिया याद रह जाती है जो एक दिन खत्म हो जानी है। फिर भी जानते बूझते अपने लिए बुराइयां इकट्ठी करते जाते हैं, अपना दीन भी खराब करते हैं और अपनी आखिरत भी। सर वो इस वक्त पैराडाइज होटल में है। किसी के साथ आधी बात रुक रुक के ठहर ठहर के अदा की। इस पे कड़ी नजर रखो और इसके फोन की डिटेल्स निकलवा के फौरन मुझे मेल करो। हरी अप। यामीन ने बात सुनते ही अगला ऑर्डर दिया। मैंने सॉरी रिकॉर्डिंग लैपटॉप पे कनेक्ट की है। हाजे किसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ और दोनों फौरन रिकॉर्डिंग देखने लगे। ग्राउंड फ्लोर पे लगे ब्राइडल रूम के अंदर लगे सफाई कैमरे की रिकॉर्डिंग वो देख रहे थे। ये खास कैमरे थे जिनको सिर्फ आज कल की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की वजह से लगाया गया था और कोई भी इसे देखता नहीं था। ये क्या, ये तो अभी तीनों थी और अब ये अकेली। रिकॉर्डिंग देखती यामीन चौंका। बीच में क्या हुआ? टाइमिंग चेक करो। टाइमिंग सही है। हाजिक बहुत क्लीनली आईज से चेक कर रहा था। तो फिर ये ब्लैक क्यों हो गया? यामीन हैरत से पूछा। किसी ने कैमरे को ढांप दिया है, हाजिक समझ गया। यामीन ने गौर किया तो इसे भी समझ लग गया। ये कौन कर सकता है? यामीन सोच में पड़ गया। लुक दैट। कैमरा दोबारा क्लियर हो चुका था जिसमें मदिया बेहोश पड़ी थी। ये सब क्या? यामीन ने हैरत से पूछा। ये तो अब मदिया ही बताएगी। हाजिक ने दांत पीसे और दोनों का रुख अब हॉस्पिटल की तरफ था। जी, तो अब देखते हैं मदिया के पास पहुंच जाते हैं या इनके पहुंचने से पहले ही मदिया फरार हो जाएगी। नावल की नेक्स्ट एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें कि कौन सा नावल आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम आपकी फरमाइश पूरी किया करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टाटा, बाय बाय।